in this stronghold of the BJP, they are facing a very, very tough time. BJP has put its reputation on stake. Mr. Modi is by and large absent, apart from a very token presence that he marked. He I think, addressed only 3 or 4 rallies this time in Haryana. More importantly, his face is missing from all the BJP hoardings. So frankly, in this election, ये हवा बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में बह रही है. This is one of those elections where I think the overall frame and fate of the election was decided even before it was called. मगर इस बार मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा. इस बार कांग्रेस और बीजेपी put together, इन दोनों का मिला के 80% वोट तो जरूर बनेगा, इससे ज्यादा ही बन सकता है. Hello and welcome. I am Praveen and you are watching IndianExpress.com. The state of Haryana is voting today on October 5th, the day we are shooting this video. And the results will be out on October 8th in just 2 days' time. Here with me, very special guest, needs no introduction. Formerly known as psychologist, now political activist, political scientist, and someone who knows, Haryana's politics of India from a very close quarters. Specifically, Haryana में इन्होंने बहुत widely travel किया, and he knows every bit of Haryana and its politics. Thank you so much, Yogendra Yadav जी, हमसे बात करने के लिए. Thank you so much for sparing time from your busy schedule today for voting day. First of all, please show your finger. And you voted in Rewari, right? Thank you, Praveen. I'm in Rewari district and Rewari Assembly constituency, where my village Saharanwas is. And yes, I've just voted about an hour ago because I've always kept my vote here in my own village. And at the back is one of our ancestral homes. So very happy to join you from here. And the internet speed is not bad in the village. So that actually makes me so happy. Yeah, thanks. Thankfully, it's good. How's the feel, sir? You voted today. You've been traveling for long in Haryana. You have been meeting people. How's the feel? How different is the 2024 election from 2019, sir? It's dramatically different in Haryana. 2019 parliamentary election was a Modi tsunami in Haryana. BJP had won all the 10 parliamentary seats. BJP had 58% vote, unprecedented. But by the time it came to 2000 assembly elections in 4 or 5 months, BJP was down to less than half. BJP had only 40 seats. Even then, in the area where I'm sitting, बीजेपी had done very well. ये जो दक्षिण हरियाणा का इलाका है, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव जिला है, यहाँ बीजेपी 2019 में भी जीती थी. यहाँ की टोटल 11 सीट हैं, जिनमें से 9 सीट बीजेपी जीती थी. और एक तरह से कहें तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस एरिया दैट बीजेपी केम टू पावर. अब यहाँ जब मैं देखता हूं तो यहाँ भी एक बदलाव की हवा है. In this stronghold of the BJP, they are facing a very, very tough time. BJP has put its reputation on stake. BJP's Central Union Minister, Mr. Ravinderjit Singh, his own daughter is trying to make a political debut in the adjacent constituency called Ateli. And the information is that she has such a tough time. I'm not saying she's going to lose. I don't know. I would not make any such forecast today when the polling is about to end. But one thing everyone would agree, Ravinderjit's supporters would also agree, that R.P. Rao, his daughter, faces a tough time. And that, for me, in a sense, is a symbol of how much things have changed since 2019. In those days, you could not imagine that that you can say a word against Mr. Modi in these areas. You could not imagine that anyone Ravinderjit supports can possibly lose. But both of this is happening. Mr. Modi is by and large absent, apart from a very token presence that he marked.
He did. He, I think, addressed only 3 or 4 rallies this time in Haryana. More importantly, his face is missing from all the BJP hoardings. If you recall, अभी जब 2024 का इलेक्शन हुआ था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, पूरे देश में और हरियाणा में हर जगह पे बड़ी बड़ी मेगा होर्डिंग्स होती थी, सिर्फ मोदी जी की फोटो थी उस पर और कुछ नहीं, मोदी की गारंटी बस और कुछ नहीं। अब बीजेपी का नाम भी छोटा सा नीचे लिखा होता था। अब आप देख लीजिए, यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड टू फाइंड मोदी जी फोटो, ऊपर एक छोटा सा मोदी जी और नायब सैनी का फोटो होता है। द मेन फोटो इज ऑफ एन आम आदमी, an ordinary woman, an ordinary pensioner, or some such thing. So basically, this is Modi Bachao, as far as BJP is concerned, an attempt to save him, his reputation, from being affected or tarnished by the results that the BJP can already see. So frankly, this is in this election, ये हवा बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में बह रही है, and everyone knows it. I'm not making any prediction, I'm not making any cephological claim. मैंने आपको सेफोलॉजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा में सड़क पे घूम लीजिए, सूंघ लीजिए, 4 लोगों से बात कर लीजिए, you would know what's happening. And everyone knows कि यहाँ रिजीम चेंज हो रहा है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। बस चर्चा यही है कि भाई 50-55 आएंगी, 60-65 आएंगी कि 70 पार जाए। That's the only thing being talked about, and that honestly is the only element of suspense left in this election. Sir, in one of your public addresses, you said हरियाणा में इस बार हवा नहीं, हरियाणा में इस बार आंधी नहीं, हरियाणा में इस बार सुनामी आ रही है। तो what does it mean? What is going to happen on October 8th? Let me clarify again. मैंने जो कहा था वो ये था कि हरियाणा में या तो हवा है, या आंधी है, या सुनामी है। फिर मैंने पब्लिक से पूछा था रैली में कि आप बताइए हवा है कि आंधी, उन्होंने कहा आंधी। मैंने कहा आंधी है कि सुनामी, उन्होंने कहा सुनामी। मगर मैं ये नहीं कहना चाहता कि हवा है, आंधी है या सुनामी है, क्योंकि तीनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू फोरकास्टिंग। मैंने लोकसभा इलेक्शन में मुझे करनी पड़ी थी मजबूरी में, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस देश को मिसलीड करना शुरू कर दिया था, और मेरी एक तरह से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी कि मैं पुराना चोगा पहन के इलेक्शन फोरकास्ट करूं। अभी करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फोरकास्टिंग करने में। मैं तो सिर्फ एक मोटी बात कह रहा हूं कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। अब इसको फोरकास्टिंग मान लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सरकार कांग्रेस की बन रही है। मार्जिन क्या होगा? अगर हवा है तो 50 के ऊपर आएंगी, आंधी है तो 60 के ऊपर आएंगी, सुनामी है तो 70 के ऊपर आएंगी। तीनों सूरत में सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, दैट्स फॉर श्योर। Regime change is taking place. Congress is forming the government because the mood is anti-BJP and has been so for the last almost more than 2 years now. So it doesn't come as any surprise. BJP, which had won all the 10 seats in 2019 with a lead of 30% over the Congress party, in this election, in this Lok Sabha election 4 months ago, BJP was down to 5 seats. And in fact, Congress had a lead of 1%. So 30% lead has been covered into -1%. Such is the sea change that has already happened. Now it's only the question of further consolidating it, which has happened. Public has made up its mind, as someone told me, कि देखो जी, ये इलेक्शन पार्टियां नहीं, नेता नहीं, पब्लिक लड़ रही है। पब्लिक ने तय कर रखा है बीजेपी को निकालना है। And the fact is that there is no other alternative than the Congress party. Okay. JJP is completely discredited. Yeah. Just the connected question. What are the key factors you think seems to be working in Congress favor? Congress की फेवर में ऐसी कौन सी चीजें बनती आपको दिखी ओवर 1 ईयर, जो कि अब इस इलेक्शन में सुनामी के रूप में या आंधी के रूप में या हवा के रूप में बदल चुकी है? If you could just देखो, to be absolutely honest, anti-incumbency started with the very formation of the second government of the BJP. बीजेपी की 14 से 19 तक सरकार थी, उसके बारे में लोगों की कुछ पॉजिटिव राय भी थी, नेगेटिव थी, जैसी सरकारों के बारे में होती है। लोग उसके बारे में कुछ पॉजिटिव बातें कहते थे कि भाई नौकरी उन्होंने ठीक तरीके से दी, ये भी कहते थे भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ इत्यादि।
लेकिन ये सेकंड गवर्नमेंट जब बनी 2019 में, मेजॉरिटी बीजेपी की थी नहीं। जेजेपी ने ओवरनाइट बदल के, पाला बदल के इनकी सरकार बनवा दी। और हरियाणा का जो किसान वोटर है, उसको पहले दिन से लगा यार ये तो धोखे से बनी हुई सरकार है। सो आप मुझसे पूछें कि भाई एक साल में क्या हुआ, ये वो चुनाव है। देखिए, अलग अलग तरह के चुनाव होते हैं। कुछ चुनाव होते हैं जो आखिरी दिन में तय होते हैं, कुछ चुनाव होते हैं जो आखिरी प्रचार वाले महीने में तय होते हैं, और कुछ चुनाव हैं जो चुनाव की घोषणा से पहले ही तय हो चुके होते हैं। So this is one of those elections where I think the overall frame and fate of the election was decided even before it was called. Anti-incumbency started 5 years ago with the very formation of the government. And it was the farmers' movement that actually broke the back of the legitimacy of this government. बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा डिड एवरीथिंग पॉसिबल। रोज गाली दिया करते थे किसान आंदोलन को, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, देशद्रोही है, ये कुलत है, अमीर है, निकम्मे है, पता नहीं क्या क्या गालियां। अब सिंपल बात ये है, अगर आप किसी को गाली दे रहे हो और पूरा समाज उसकी पूजा कर रहा है, तो किसे नुकसान होगा? आपको ही नुकसान होगा। So BJP completely lost legitimacy in this election due to the farmers movement, and then came the protest by the women wrestlers. It's a very touchy, emotional, moral issue. आपके बैकग्राउंड में कांग्रेस की जीत के पटाखे तो नहीं फूट रहे हैं? कुछ बच्चे चला रहे हैं पटाखे। अब ये थोड़ा, अब दशहरे का सीजन भी आ रहा है ना, जी जी, वो सब बच्चों का चल रहा है। प्लीज कैरी। तो ये जो विमेन्स रेसलर्स प्रोटेस्ट जो था, वो हरियाणा में एक तरह से किसान आंदोलन की कंटिन्यूटी था। तो बीजेपी सही लेजिटिमेसी थी वो रेसलर्स प्रोटेस्ट में खत्म कर। तो अगर आप आज से 1.5 साल में पूछ लेते कि भाई किसकी सरकार बनेगी, तो तभी लोग बता देते कि जी बीजेपी की तो ना बने, और किसकी बने पता नहीं। मतलब ये तो 2 साल पहले ही पता था। उसके बाद अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, स्पेसिफिक मुद्दे हैं, इसके अलावा भी मुद्दा है रोजगार का। बेरोजगारी बहुत भारी और भयानक है यहाँ पे हरियाणा में। और अग्निवीर जो है, उसका सबसे ज्यादा असर जिन इलाकों पे हुआ है वो उसमें हरियाणा है, और खासतौर पे वो इलाका जहां मैं बैठा। देश के 2-3 बेल्ट हैं जहां से सबसे ज्यादा लोग आर्मी में रिक्रूटमेंट होती है। एक राजस्थान की ईस्टर्न बेल्ट है, झुंझुनू सीकर वाली बेल्ट। दूसरा ये जो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का इलाका है, यहां से बहुत ज्यादा आर्मी में रिक्रूटमेंट होता है। हमारे गांव में रोज सुबह सुबह बच्चे घुमा करते थे, दौड़ा करते थे, फिजिकल फिटनेस, आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए। अब सडनली इट्स ए डबल वेमी। एक तो जो 20 साल की परमानेंट नौकरी थी, उसको घटा के 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर दिया। अब उन बच्चों की शादी नहीं होती। लोग पूछते हैं कि भाई पक्के वाला है कि कच्चे वाला है। मतलब अग्निवीर लगभग मजाक हो गया है। किसी की कच्ची नौकरी हो जाए तो लोग कहते हैं अरे भाई इसका तो अग्निवीर हो गया, है ना। इस तरह का मजाक बन गया है वो। जो कि इस इलाके में प्राइड का सवाल था कि भाई लड़का फौज में चला गया, एकदम ऐसा समझते थे कि चलो इसका तो पूरा परिवार सुधर गया। शादी होती थी, पूरा परिवार सुधरता था, वो हुआ है। और डबल वेमी इसलिए है कि यहाँ जो ना सिर्फ टेन्योर कम हो गया है, बल्कि जो क्वांटिटी थी यहाँ रिक्रूटमेंट की, यहाँ कोई 1,500-2,000 रिक्रूटमेंट साउथ हरियाणा से होता था, और 4,500-5,000 रिक्रूटमेंट पूरे हरियाणा से होता था। इट्स बीन कट टू 1/3। तो रिक्रूटमेंट का नंबर कम हो गया है, रिक्रूटमेंट की नेचर बुरी हो गई है। तो इस सब का बेहद गुस्सा है। मतलब बीजेपी वाले अग्निवीर को डिफेंड नहीं कर सकते इस इलाके में। बीजेपी का पक्का सपोर्टर से आप अग्निवीर के बारे में पूछ लो, वो कहेगा भाई साहब को दूसरी बात करो। मतलब ये स्थिति है। तो इन सब के चलते, और भ्रष्टाचार सेकंड सरकार में काफी हुआ। पहले भी नहीं थी बीजेपी की इतनी भ्रष्टाचारी होने की, लेकिन ये जो सेकंड रिजीम आया, इसमें इतना भ्रष्टाचार, और लोग कहते हैं रेट भी बढ़ गए हैं और काम होने की गुंजाइश भी कम हो गई है। तो भ्रष्टाचार का सवाल आया। सरकार ने कई स्कीम्स लागू की, जिसमें से एक स्कीम है फैमिली आईडी। आधार की तरह पूरा फैमिली का एक आधार बनाना मैंडेटरी हो गया है। और दिक्कत यह कि मैंडेटरी बनाते ही बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं कर पाते हैं। So it has caused huge havoc, panic, all kinds of problems are coming up. तो ये सब चीजें जुड़ गई हैं।
So in a sense, most of the things are working against the BJP in this election, which is not to say that BJP is not contesting the election seriously. This I must give credit to BJP. मतलब जैसा मैं कहता हूं, अगर उनको लास्ट ओवर में 40 रन बनाने का भी चैलेंज आ जाए तो बीजेपी वाले खड़े होके एटलीस्ट बैटिंग जरूर करेंगे. सो दे हैव बैटेड इट आउट. करेक्ट. इसी से जुड़ा सवाल ये है कि हमने लोकसभा इलेक्शन देखा 2024 का, जिसमें बीजेपी का नंबर 10 से 5 हो गया, और वो एक वेकअप कॉल तो था ही बीजेपी के लिए. तो आपके हिसाब से वो कौन से कोर्स करेक्शंस थे जो बीजेपी ने अभी असेंबली इलेक्शन तक कर लिए, जिसकी वजह से डैमेज थोड़ा सा, एक एक वो होता है ना, डैमेज कंट्रोल हो गया? व्हाट आर द की फैक्टर्स? डैमेज कंट्रोल हुआ है या नहीं अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी ने कोशिश की है डैमेज कंट्रोल की. पहला सबसे बड़ी कोशिश तो उन्होंने लोकसभा इलेक्शन से पहले ही कर ली थी, मनोहर लाल खट्टर को हटाना और नायब सिंह सैनी को लाना. इट हैज वर्क टू बीजेपीज एडवांटेज. सारे लोग कहते हैं कि जी खट्टर से तो ये सैनी अच्छा है, क्योंकि खट्टर जी की जो इमेज बन गई थी वो बिल्कुल लोगों से कटा हुआ, अहंकारी और असंवेदनशील एक, और थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड. उस लिहाज से सैनी जी ने कुछ धूमधाम की है, नई घोषणाएं की हैं, कुछ एनर्जी लाए हैं. ये लोकसभा इलेक्शन से पहले ही आ गए थे, बट टू माय माइंड इट वाज टू लेट ऑलरेडी. दूसरा, बीजेपी ने अपने जो कैंडिडेट सिलेक्शन किए हैं उसमें काफी टफ डिसीजंस लिए हैं. कई बहुत बड़े नाम वाले नेताओं को ड्रॉप कर दिया, जैसे यहाँ पड़ोस में रामविलास शर्मा, जो ऑलमोस्ट बीजेपी के फाउंडर्स में से रहे हैं हरियाणा में, उसका टिकट काट दिया. तो बीजेपी ने टिकट काटने में काफी टफ डिसीजंस लिए जो लेने की जरूरत थी. और आखिर में बीजेपी ने वो कार्ड खेला है जो बीजेपी के लिए लास्ट कार्ड होता है, दैट इज टू से जो सोशल डिविजन, कास्ट डिविजन. हरियाणा में हिंदू मुसलमान का कार्ड तो चल नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ही नहीं. तो बीजेपी का असली कार्ड हरियाणा में है, जिसको 35-1 बोलते हैं. अब बाहर के लोग सोचेंगे 35-1 क्या लफड़ा होता है. 35 वर्सेस 1. हरियाणा में मिथिकली कहते हैं कि 36 कम्युनिटीज है, 36 बिरादरी. हाँ, मैं भी बहुत सारी सीट्स पे भी गया हरियाणा असेंबली में, लोकसभा में भी. तो ये बात हर कैंडिडेट बोलता है कि मेरे साथ 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी का मेरे साथ सपोर्ट है. तो अभी 36 कौन सी है मेरे से मत पूछिए, मिथिकल फिगर है. तो ये, मगर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हरियाणा में जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ और उसके बाद हरियाणा में हिंसा भी हुई, तनाव, जातीय तनाव हुआ, बीजेपी ने उसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया. केवल उस वक्त नहीं, उसके बाद लगातार. और इस रणनीति को बोला जाता है 35-1 की स्ट्रेटजी, जिसका मतलब है पूरे समाज में 36 में से 35 बिरादरी एक तरफ और बच गई एक, कौन? जाट. बेसिकली एंटी जाट मोबिलाइजेशन, पोलराइजेशन करना बीजेपी ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के रूप में जम के इस्तेमाल किया है. अब नॉर्मली हमारी इमेज बीजेपी के बारे में रहती है कि भाई एंटी मुस्लिम है और सारे हिंदुओं को यूनाइट करने वाली पार्टी है. एक्चुअली बीजेपी कहीं ऐसा करती नहीं है, पता नहीं क्यों ये इमेज बना हुआ है. बीजेपी बिल्कुल ओपनली, ब्रेजनली कास्ट हेट्रेड की पॉलिटिक्स करती रही है. यहां हरियाणा में एंटी जाट है, तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ओपनली, ब्रेजनली एंटी यादव पॉलिटिक्स बीजेपी करती है. तो ये बीजेपी ने आखिरी अपना हथियार यही खेला है पिछले कुछ 2-3 हफ्ते से. बहुत ओपनली, ब्रेजनली लोगों के अंदर कहना कि भाई, अरे भाई जाटों का राज आ रहा है, देख लो, फिर आपको वो चाहिए तो. और ये सब चीजें बीजेपी खुल के कर रही है. मेरे ख्याल से इट्स नॉट वर्किंग. इट्स नॉट वर्किंग in the proportion in which BJP would want it to work or BJP needs it to work. थोड़ा बहुत कहीं हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है बीजेपी के लिए कुछ जगहों पे, और हो सकता है 2-4 हरी सीटें बीजेपी इस चक्कर में बचा ले. लेकिन जो पूरे राज्य का चुनाव पलटने का जो मामला था, वो अभी हो नहीं पा रहा है. वो हिंदी में कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ती. अब कितनी बार एंटी जाट करके आप चुनाव जीत लोगे? अब जनता को भी समझ आने लग गया ना. मैंने भी उस स्पीच में जो आपने जिक्र किया, उस स्पीच में मैंने कहा कि भाई यहाँ आपको आके बताते हैं, यहाँ के यादव को, ये जो इलाका जहां मैं बैठा हूँ, यादव बहुत बड़ी संख्या में है, दक्षिण हरियाणा का जो इलाका है. तो मैंने कहा यहाँ पे तो आपको कहते हैं, यादवों को कहते हैं देखो जाट बहुत वो हैं, हम यादवों के साथ हैं. और वहां उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ब्रेजनली ऑर्डर इशू करते हैं कि जिस जिस इलाके में इलेक्शन होगा वहां से जितने भी यादव पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको हटाया जाए.
ये जो मंगेश यादव का मर्डर हुआ, बिल्कुल ब्रेजनली मर्डर किया है पुलिस ने, ये सब क्या हो रहा है? तो अब जनता को इस सब के बारे में पता लगने लगा है, तो इसलिए ये कार्ड उतना काम नहीं कर रहा है। ओके, moving on to next question. Sir, is it a fight, these assembly election, is it a fight directly between BJP and Congress, or the regional parties like INLD, like JJP and their allies, ASP, Azad Samaj Party, and BSP, have they anything on stake in these elections? Well, they have a lot at stake. The question is whether the people are willing to support them. हरियाणा ट्रेडिशनली कभी भी डायरेक्ट बाइपोलर कॉन्टेस्ट नहीं रहा है पिछले बहुत सालों से। हरियाणा के ज्यादातर इलेक्शन ट्रायंगुलर होते थे, क्वाड्रेंगुलर होते थे। दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन। अगर आप जैसे 2014 2019 का इलेक्शन देखिए, असेंबली इलेक्शन, उसमें कांग्रेस और बीजेपी का वोट जोड़ दीजिए, कांग्रेस और बीजेपी का कंबाइंड वोट सिर्फ 65% है, यानी कि 35% वोट वेंट टू अदर पार्टीज। मगर इस बार मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इस बार कांग्रेस और बीजेपी पुट टुगेदर, इन दोनों का मिला के 80% वोट तो जरूर बनेगा, इससे ज्यादा ही बन सकता है। और जो दूसरी पार्टीज है, सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार थी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला वाली, वो तो इतनी डिस्क्रेडिट हो चुकी है, खास क्योंकि वोट उसको मिला था किसानों का वोट लेके आप बीजेपी को ज्वाइन करो और किसान आंदोलन को गालियां दो, ये तो चल नहीं सकता ना। अब उसके खिलाफ तो इतना गुस्सा है। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ जेजेपी विंस इवन ए सिंगल सीट इन हरियाणा। तो पूरी तरह से अभी तो द लास्ट आई हर्ड वाज कि दुष्यंत चौटाला खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी उचाना से लड़ रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही इज नॉट इवन इन कॉन्टेस्ट, ही इज नॉट इवन अमंग द टॉप 2 कैंडिडेट्स। ये हालत हो गई। सो जेजेपी तो आउट है। जेजेपी के पार्टनर हैं चंद्रशेखर रावण की पार्टी। मुझे नहीं लगता कि वो तो एक सिंकिंग शिप पे जंप करने वाला मामला है। इनेलो की कंडीशन जेजेपी से ज्यादा बेहतर। पिछली बार इनेलो को जेजेपी ने बिल्कुल वाइप आउट कर दिया था, वो नहीं होगा इस बार। जेजेपी आईएनएलडी इनेलो जिसको बोला जाता है, चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी, उनका बेटे अभय चौटाला है, वो चलाते हैं। उनकी स्थिति वोट्स में थोड़ी बेटर होगी। उनका एक अपना इलाका भी है, सिरसा फतेहाबाद जिलों में उनका एक अपना ट्रेडिशनल सपोर्ट रहा है, जो बागड़ इलाका यहाँ का बोला जाता है उसमें। मगर आई डोंट, और उनको बीएसपी का सपोर्ट भी है, और बीएसपी की 2-4 सीटों में अपनी प्रेजेंस भी है। वोट कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 2-4-5 सीट से फालतू बढ़ पाएंगे। बच गई तीसरी आम आदमी पार्टी। अब स्ट्रेंजली पंजाब में आम आदमी पार्टी की डोमिनेंस है, इस तरफ दिल्ली में डोमिनेंस है, सैंडविच के बीच में है हरियाणा, और वहां आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट मिसिंग है। आखिरी मिनट तक कोशिश करते रहे कांग्रेस के साथ अलायंस की, बात नहीं बनी तो फिर सारे 90 कैंडिडेट खड़े किए। आम आदमी पार्टी को बतौर पार्टी 5-10 हजार वोट भी हरियाणा में कहीं नहीं। हाँ, ये जरूर है कि 2-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनके कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जिनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया है। अगर वो इंडिपेंडेंट होते तब भी 15-20 हजार वोट ले लेते। आम आदमी पार्टी के साथ है तो 20-25 हजार वोट ले लेंगे। मगर वो इंडिपेंडेंट्स है, वो एक्चुअली पार्टी का वोट नहीं है। तो इसलिए मेरी अपनी समझ है कि इस बार तो हो सकता है इंडिपेंडेंट्स, रेबल्स, स्मॉल पार्टी, सब कोई मिला के अगर 10 सीट से फालतू चले जाएं तो मुझे मतलब अजीब, थोड़ा हैरानी। हरियाणा में पहले इन सबको मिला के 20-25 सीट, 30 सीट आ जाया करता था, तो दिस इज ए वेरी पोलराइज्ड इलेक्शन। ये दोनों मिला के 20% वोट से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से 10 सीट से ज्यादा इनको आना इस बार मुश्किल दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी का अलायंस में नहीं आना कांग्रेस का फायदा आपको लगता है कि बीजेपी, इसका आम आदमी पार्टी का नुकसान लगता है? आम आदमी पार्टी का तो नुकसान है ही कि अब अगर आप आखिरी दिन तक कांग्रेस के साथ अलायंस की कोशिश कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है, अखबारों में छप रहा है, तो फिर अगले दिन जाके आप कांग्रेस के खिलाफ प्रचार क्या करेंगे? है ना, तो मुश्किल चीज हो जाती है ना। और दूसरा, उनको अब अपने कैंडिडेट चुनने के लिए आखिर में सिर्फ 24 घंटा मिला। एक तो टेक्निकल डिसएडवांटेज तो था ही आम आदमी पार्टी के साथ। और
सच ये है कि जब उन दोनों की बात चल रही थी हरियाणा चुनाव में, तो मैं थोड़ा हैरान था कि क्या चल रहा है, क्योंकि फ्रेंकली कांग्रेस डज नॉट नीड आम आदमी पार्टी इन हरियाणा। तो मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि हो सकता है दिल्ली की कोई अंडरस्टैंडिंग हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी मे नीड कांग्रेस एंड कांग्रेस नीड्स आम आदमी पार्टी। बट इन हरियाणा कांग्रेस डजंट नीड आम आदमी पार्टी, कांग्रेस डजंट नीड एनी पार्टी। सो कांग्रेस ने तो एक टिकट सीपीएम को दिया है, एक सीट भिवानी सीपीएम से। के लिए छोड़ी है, भिवानी वाली। उसके अलावा तो कहीं है नहीं, और फ्रेंकली कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस 4-5 सीट दे देती है आम आदमी पार्टी को, तो बैठे बैठाए कांग्रेस को 4-5 सीट का नुकसान हो जाता, जो उन्होंने नहीं होने दिया, बस दैट्स ऑल। ओके सर, कांग्रेस जो है हरियाणा में जाट और दलित के कंसोलिडेशन पे रिलाई कर रही है कि उसके कंसोलिडेशन से हम जीतेंगे। मगर ये जो आईएनएलडी और बीएसपी है, इधर आपका जेजेपी और एएसपी है, इनके अलायंस से कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ है आपको लगता है, और बीजेपी का कहीं ना कहीं फायदा हुआ इन इलेक्शन में, इन दो अलायंसेस से, और इनको ये सब बीजेपी वीक पुराने कर रहे हैं। हम्म। ये सब पुराने स्टैटिक कैलकुलेशंस हैं। देखो, ये सब चीजों का असर जो कुछ होना था लोकसभा चुनाव में हो चुका है ना? तो वो अगर वहां पे सब कुछ हो चुका है, उसके बाद से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। जेजेपी तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल फिनिश्ड है एज ए पार्टी, बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी हालत है जेजेपी की तो इस वक्त। ओके। बीएसपी इज ए कॉन्स्टेंटली श्रिंकिंग फोर्स इन हरियाणा। और चूंकि हरियाणा में कांग्रेस की एक दलित लीडरशिप रही है, इसलिए बीएसपी के लिए बहुत स्पेस नहीं। इनेलो कुछ जगह परफॉर्म करेगा, लेकिन वो रीजनल फोर्स है, इनेलो पूरे हरियाणा की फोर्स नहीं है। इसलिए ये सब क्या होता है कि बीजेपी का जो स्पिन डॉक्टर्स हैं वो दिल्ली में बैठे हुए ऐसी बातें रोज फैलाते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, जमीन पे स्मार्ट नहीं है, मीडिया में बहुत स्मार्ट है। तो हर रोज कोई ना कोई ऐसी स्पिन फैलाते हैं, हर कोई ऐसी नई ना कोई जो करते हैं। ये सब बहुत ही छोटे फैक्टर हैं। और असली बात यह है कि सिर्फ जाट और दलित के बेसिस पे कांग्रेस नहीं आ रही है। असली बात यह है कि तमाम जातियों में बीजेपी का वोट गिर रहा है, यादवों में गिर रहा है, जिनके आधार पे तो बीजेपी को साउथ हरियाणा में टोटल सक्सेस मिली थी। ये अपना गुर्जर समाज में बीजेपी डाउन है, जाट में डाउन है। हाँ, सैनी में हो सकता है सपोर्ट रहे, क्योंकि सैनी मुख्यमंत्री है। मगर उसके अलावा लगभग हर जाति समाज में बीजेपी का वोट गिर रहा है। जब कोई एक हवा चलती है, तो हवा सिर्फ एक दो जातियों से नहीं चलती, हवा पूरे समाज में चलती है, और वही इस बार हो रहा है। ओके सर, कांग्रेस अभी लग रहा है कि कांग्रेस की हवा है, और लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी जैसा कि आपने दावा भी किया। मगर वहां पर सरकार को लीड करने के लिए बहुत सारे दावेदार हैं। शैलजा कुमारी एक तरफ अपना दावेदारी रख रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कोई तीसरा आदमी भी आ सकता है, सुरजेवाला भी कहते रहे हैं कि मैं भी सीनियोरिटी के लेवल पे आ सकता हूँ। आपको क्या लगता है, हु कैन बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द सीएम टू लीड the state of Haryana against BJP for next 5 years? इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड टू ए रॉन्ग पर्सन। आप अगला इंटरव्यू जब कांग्रेस वालों से करें तो जरूर ये सवाल पूछिएगा। आई हैव एब्सोल्युटली नो स्पेशल इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज Okay. इन आंसर दिस। फेयर इनफ। सर आप ये बताइए कि अभी हरियाणा की जो दलित राजनीति है, स्पेशली कांग्रेस की, उसमें अशोक तंवर की रिटर्न के बाद क्या क्या चेंजेस होते दिख रहे हैं? पहले क्या स्ट्रेंथ थी कुमारी शैलजा को, जो बीजेपी ने एक बनाया कांग्रेस के अगेंस्ट हथियार की, वो उसको साइडलाइन कर रहे हैं, इसलिए अशोक तंवर को ला रहे हैं। अब अशोक तंवर के आने के बाद क्या नैरेटिव है विद इन कांग्रेस, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, हरियाणा में जैसा मैंने कहा, बीएसपी के ना आने की एक वजह ये रही है कि हरियाणा में कांग्रेस के पास एक अपना दलित लीडरशिप रहा है। कुमारी शैलजा के पिताजी दलबीर सिंह जी काफी एक वेल नोन चेहरा रहे, इससे पहले चांद सिंह जी थे। तो हरियाणा में कांग्रेस के पास रिकॉग्नाइजेबल दलित फेसेस रहे, जिसमें अशोक तंवर एक नए चेहरे के रूप में आए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राज्य स्तर पे। लेकिन चूंकि बाहर आ चले गए, और सिर्फ एक बार बाहर नहीं गए, बाहर पूरा घूम आए, वो टीएमसी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी सब तरफ घूम आए। तो इतना ज्यादा घूमने के बाद थोड़ा वजन कम हो जाता है किसी का भी।
तो वैसा हुआ होगा, तो अभी तो देखना होगा। फिलहाल तो कुमारी शैलजा कांग्रेस में दलित समाज का सबसे बड़ा चेहरा है। और कांग्रेस को इस चीज का एहसास है कि उनकी चुनावी सफलता केवल एक जाति के आधार पर नहीं आ सकती, और जब तक दलित वोटर को ठीक से एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक टर्म में हरियाणा में अपने पांव जैसे जमा के रखने वाला काम है नहीं कर पाएगी। तो ये सब पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिक्स का मामला है, जिसमें जाहिर है कांग्रेस को, कांग्रेस राहुल रहे हैं, कह रहे हैं 36 बिरादरी की सरकार चलाएंगे, 35 की नहीं, एक की नहीं। बहुत अच्छी बात है। अब इलेक्शन के बाद इसका इम्तिहान होगा कि वो चलाते हैं कि नहीं। वन लास्ट क्वेश्चन सर, विल रैप अप आफ्टर दैट। आपको जानने वाले, आपको पहचानने वाले, आपको फॉलो करने वाले थोड़े कंफ्यूजन में हैं कि एट व्हाट कैपेसिटी यू आर एड्रेसिंग पब्लिक फ्रॉम कांग्रेस रैलीज। यू हैव ट्रेवल्ड ऑल थ्रू इंडिया विद राहुल गांधी, उनका न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा। व्हाट एग्जैक्टली इज योर एसोसिएशन विद कांग्रेस? इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। मैं हैरान हूं, क्योंकि ये तो सब रिटर्न है। कोई दिक्कत ये होती है कि हम इन चीजों को जरा देखते नहीं है। हमने 2022 में, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है स्वराज इंडिया, स्वराज इंडिया ने 2022 में रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज, इंटरव्यू सब कुछ करके बताया कि हमने फैसला किया है कि इस वक्त देश में इतना बड़ा संकट है कि हम अपने चुनाव को अहमियत दें, वो गलत बात होगी। इसलिए हम किसी भी असेंबली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और हम जो बीजेपी को हरा सकता है, जो देश में डेमोक्रेसी को बचा सकता है, उनका समर्थन करेंगे। उसके बाद हमने इस निर्णय के आधार पे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, बिल्कुल खुल के, ओपन पब्लिक, झंडा लेके। हम तो कांग्रेस का झंडा नहीं, अपना जन आंदोलनों का झंडा लेके शामिल हुए। यात्रा के बाद हमने भारत जोड़ो अभियान बनाया। भारत जोड़ो अभियान जो कि कांग्रेस का नहीं है, जो देश के जन आंदोलनों का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो सब मिलके कहते हैं कि इस वक्त देश में जो क्राइसिस है, ऐसे में आरएसएस बीजेपी को हराना, इस आइडियोलॉजी को हराना, देश को बचाने, देश को कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उस भारत जोड़ो अभियान का मैं नेशनल कन्वीनर हूं। वो भारत जोड़ो अभियान के पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ लीजिए। अभी इस लोकसभा चुनाव के बाद वर्धा में हमारा नेशनल कन्वेंशन हुआ, जहां हमने रिट्रेट किया कि काम तो हुआ है लेकिन अभी काम अधूरा है। और हमने तय किया कि हम तमाम राज्यों में, सिर्फ हरियाणा में नहीं, महाराष्ट्र में, झारखंड में, भारत जोड़ो अभियान के सभी साथी और उससे जुड़े हुए तमाम जन संगठन, इसमें किसान संगठन शामिल हैं, मजदूर संगठन हैं, इसमें दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, तमाम चीजों पे काम करने वाले आंदोलन है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, सब मिलके ऐसे में बीजेपी को जो हरा सकती है उस पार्टी का समर्थन करेंगे। सिर्फ कांग्रेस का नहीं करते। जब बंगाल में थे लोकसभा चुनाव में, हमने टीएमसी का सपोर्ट किया, क्योंकि हमें लगा टीएमसी इज मोर सुटेड टू डिफीट द बीजेपी देयर। तो ये हमारी एक प्रिंसिपल पोजीशन है, और उस प्रिंसिपल पोजीशन के तहत हम ओपनली भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हरियाणा में कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, भिवानी में सीपीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रकाश, उत्तर प्रदेश में, जी, कॉमरेड ओम प्रकाश। कॉमरेड ओम प्रकाश जहां कैंडिडेट है, बिल्कुल मैं उनके पक्ष में रैलियां करके आया हूं।